Good morning, students. Today we are going to discuss very important article and last article of this chapter, Rutherford scattering. जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आर्टिकल पूछा जाता है 8 मार्क्स में कि व्हाट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग, प्रूव दैट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर रदरफोर्ड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल why a nucleus is inversely proportional to square of energy of incident alpha particles. या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो what is Rutherford scattering, obtain an expression for the scattering cross section for Rutherford scattering. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इसमें इसको आपने लर्न करना है और एज ए असाइनमेंट भी इसको मैंने दिया आपको, ये एज ए असाइनमेंट भी आपने इसको पूरा करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद रदरफोर्ड स्कैटरिंग. द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड रदरफोर्ड स्कैटरिंग. रदरफोर्ड suggested that the deflection of alpha particle through the large angle was a result of single encounter with an atom rather than multiple scattering. So for this, the Rutherford has assumed that the nucleus and alpha particle act as a point charges and the scattering is due to electrostatic force of repulsion between the two. कौन कौन से? एक पॉइंट ऑफ चार्ज लिया है आपने अल्फा पार्टिकल और एक न्यूक्लियस लिया, उनकी बात कर रहे हैं. तो लेट्स Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, E चार्ज बन गया, चार्ज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एंड 2E चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि हीलियम 2 4. द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल at point P as shown in figure at a distance r from the nucleus is given by F is equal to 1 by 4 epsilon naught Q1 Q2 upon r square. ये हमारे पास कूलम्स लॉ सिमिलरली हमने यहाँ यूज किया है रिपल्सिव फोर्स के लिए. F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught ZE into 2E upon r square. Then multiply या simplify these equations to ZE square upon 4 pi epsilon r square. Let it be equation number 1. So if we can reduce this equation in this way, F is equal to K upon r square, where K is nothing but is equal to 2Z E square upon 4 pi epsilon naught. The alpha particle will move in central force. Let us consider this problem as equivalent to one body problem having reduced mass mu and moving along a center of eccentricity. ये हमने पहले किया हुआ है वन बॉडी प्रॉब्लम्स में. इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू, या एप्सिलॉन भी बोल देते हैं कि E, वैसे E से मैंने रिप्रेजेंट किया 1 प्लस 2L E स्क्वायर अपॉन म्यू K स्क्वायर का स्क्वायर रूट. Let it be equation number 3, where E is the total energy and L is the angular momentum. If U is the initial velocity of alpha particle at a very large distance, as a large distance means that at infinity, then the energy E is equal to, या total energy E is equal to kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है हाफ एम बी स्क्वायर, पर m मेरे पास कहाँ यहाँ रिड्यूस मास है और u इज द वेलोसिटी. देन पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं यहाँ पे, जब वो क्योंकि एट इन्फिनिटी पे है तो जीरो होगी. देन वी हैव 1/2 म्यू u स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4. सो देन वी रीअरेंज दिस इक्वेशंस. 2 म्यू e इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 म्यू e. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5. इफ B is the impact parameter, then पिछले आर्टिकल में हमने इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी. इम्पैक्ट पैरामीटर को हमने डिफाइन भी किया था, अगर आप लोगों को याद है कि इम्पैक्ट पैरामीटर्स क्या होता है. तो L इज इक्वल टू म्यू U इंटू B.
अब y equation fifth we have L is equal to B square root 2 mu E. This is equation number 6. From equation number 6 we get epsilon square is equal to 1 plus 2 E L square upon mu K square. By using the equation number 6, we can write it as epsilon square is equal to 1 plus 2 E V square 2 mu E upon mu K square. अब म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, epsilon square माइनस 1 मैं दूसरी साइड ले गया, तो देन वी हैव 2 E B upon K का होल स्क्वायर. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 7. As you know that 2 E B upon K square is a positive quantity. So if epsilon square या eccentricity is greater than 1 या epsilon greater than 1 या उसका स्क्वायर, तो जो eccentricity अगर greater than 1 रहती है, हमने आर्टिकल्स में पढ़ा, हमें पता है ये सारा, तो पार्टिकल्स का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है. तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट द अल्फा पार्टिकल विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ या पैराबोला पाथ. As you know that the eccentricity of parabola is given by epsilon square minus 1 is equal to cotangent square theta by 2. By using the equation number 7, 2EB upon K का होल स्क्वायर is equal to cotangent square theta by 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, epsilon square minus 1 is equal and epsilon square minus 1. हमने इक्वेट कर दी दोनों इक्वेशन को, then we get 2EB upon K is equal to cotangent theta by 2. This is the equation number 8. If you see this figure, you can analyze that the alpha particle with impact parameter between B and B plus dB would be scattered into an angular range theta d theta at theta. So the probability of such collision is proportional to the area of an annular ring of radius B and width dB. So एंगुलर है, रिंग है, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 पाई B इंटू डी बी बन गया. रेडियस हमारे पास दिया उसने. इफ I be the intensity of incident beam, then the number of particles with impact parameter B and B plus dB is equal to 2 pi I into A into B. Let it be equation number 9. If the alpha particle in solid angle d omega is given by d omega is equal to 2 pi sin theta d theta. The number of particles scattered into solid angle d omega per unit time, क्या रिलेशन निकाला था हमने, n is equal to n SC, SC का मतलब स्कैटरिंग, थीटा d ओमेगा इज इक्वल टू डी ओमेगा की वैल्यू है मेरे पास ऊपर, मैंने उसको पुट कर दिया, तो अल्फा एससी थीटा आई 2 पाई साइन थीटा डी थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 10. सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, इक्वेशन को पुट कर रहा हूं, इसमें कोई बड़ी मैथमेटिकल नहीं हम यूज कर रहे. द नंबर ऑफ पार्टिकल विद इंपैक्ट पैरामीटर बी एंड बी प्लस डीबी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट टाइम. So by using the equation number 9 and 10, we get sigma SC I 2 pi sin theta d theta is equal to minus 2 pi I b dv. अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ गया कि माइनस कहां से आ गया. सो दिस माइनस साइन सिग्निफाइज दैट विद इंक्रीज इन dv the force on alpha particle decreases and hence d theta decreases. That's why I have put it here minus 2 pi I b dv. जो चीज कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दी, 2 पाई से 2 पाई, I से I इंटेंसिटी से. और हमारे पास क्या है इक्वेशन, सिग्मा एस सी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी डी बी अपॉन साइन थीटा डी थीटा. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 11. So by using the equation number 8, we see that b is equal to k upon 2e cotangent theta by 2. Differentiate both sides this equation, we get dv is equal to minus k upon 2e
cosecant square theta by 2 into d theta upon 2. By using equation number 11, we get sigma SC theta is equal to k upon 2e cotangent theta by 2 into k upon 2e cosecant square theta by 2 into d theta upon de into 1 by sin theta upon 1 upon sin theta into d theta. So rearrange these equations. Yeah, we can write this equation in a simplify. Sigma SC theta is equal to 1 by 8 k upon e का होल स्क्वायर कोटेंजेंट cos थीटा बाई 2 कोटेंजेंट को उसको हमने चेंज कर दिया cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. ये हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की हैं. ये हमने +1 और +2 में की हुई है, सिर्फ हमने उनको यूज किया. यहाँ सिग्मा SC थीटा इज इक्वल टू 1/16 k अपॉन e का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा बाई 2. बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर सेकंड हमने उसमें इसकी वैल्यू पुट कर लिया. अगर आप इक्वेशन नंबर सेकंड को देखते हो तो हाँ 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में हमने वैल्यू पुट करनी है k की, वही हमने यहाँ पुट कर ली. Then we get the result sigma SC theta is equal to 1/16 2ze square upon 4 pi epsilon naught e का होल स्क्वायर cosecant 4 theta by 2. चाहे साइन लिख लो चाहे वो, क्योंकि 1 upon है हमें पता cosecant होता है. Then if you see that in CGS system 1/4 pi epsilon naught is equal to 0, then we get the results as sigma SC theta is equal to 1/16 2ze square upon e का होल स्क्वायर 1 अपॉन साइन की 4 थीटा बाई 2, या हम कॉसिकेंट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग. सो द फिजिकल मीनिंग्स या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज दैट इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम, पर स्कैटर, पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स डेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन. तो दिस इज दी रदरफोर्ड स्कैटरिंग. मैंने स्टार्टिंग में भी वीडियो के बोला है लेक्चर के कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है एग्जाम्स में आता है, तो आपने इसको एज ए असाइनमेंट भी यूज करना है. और ये असाइनमेंट है सब बच्चों के लिए रदरफोर्ड स्कैटरिंग्स. इसमें 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं. स्टार्टिंग में भी बताया था कि व्हाट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग, प्रूव दैट द डिफरेंशियल scattering cross section for Rutherford scattering of alpha particle by nucleus is inversely proportional to the square of the energy of the incident alpha particles. ठीक है, hope you enjoy this lecture. Thank you very much.